So, what I feel that the teachers guide you at time, the practice part is going on, right? Is it going or not? So, before starting the session, I would like to know from the management side that what kind of problem that you are facing related to your syllabus. So, anyone who can put your views so that we will be able to understand by me that what are the challenges where we are lacking ourselves. So you can take the mic and say where is your problems. Shiksha with Dr. Ganesh Dutt is here to guide you. But prior to that, it is very important to understand your problem first. Exactly. So, whatever the questions and the doubts which you have before leaving this unity premises, you have to ensure that you clear out all of your doubts. Clear? Here is nothing like you are going to hide someone in terms of completing the syllabus, in terms of completing your syllabus. Correct? So, before starting the programs, I would like to request all of you to just make your posters in such way that I feel that you are absorbing or not sleeping. Okay? So, as I always said, before starting any session, I like to just say, correct your body posture when you are sitting on the chairs. Close your eyes for 1 minute. Concentrate together and just to learn that what the Ganesh Dutt sir is going to be the best solution against your stress and everything. So, just close your eyes. When I will say open your eyes, then you open your eyes. Close your eyes and make your body posture correct. Concentrate that you are going to learn the best thing and the most important topics which will change your lifestyle, which will change your numbers also when you are appearing for the final examination. So each and every moments are very important. So I feel that all of you are in a such mode we are able to gain the best knowledge which will be given by Ganesh Pathak sir. So I would like to call on stage Ganesh Pathak sir to come and give you a best suggestion, the valuable suggestion for the kids that they will be coming out of their stress and try to get more knowledge in their lives. Open your eyes and now concentrate your Dr. Emerson. So give a big clap for thank you. परीक्षा बेसिकली जो आप पढ़ाई करते हैं इसमें क्या होता है कि इसका एक उद्देश्य ये होता है कि आपके जीवन में जो चुनौतियां आएंगी उसका सामना करना। दूसरी तरीके से परीक्षा आपके सामने एक चुनौती दी जाती है कि आपको एक सिलेबस दिया गया और आपकी परीक्षा दी जाएगी, तो आपने उस सिलेबस में कितना अपना प्रयास किया है इसका प्रमाण आएगा, मिल जाता है कि आपने कितनी तैयारी की है, कितने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, तो परीक्षा के साथ सबसे बड़ी चीज करते हैं जब परीक्षा आप देते हैं तो उस समय आप साधना करते हैं और ये जो परीक्षा का समय होता है ये ऐसा होता है कि अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर आपकी गलती हो गई या आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो आपका जो सारा मेहनत होता है उसमें पानी फिर जाता है। तो ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही संजीदगी का होता है, बहुत गंभीरता का होता है कि इस समय चीजों को हमको बहुत ज्यादा ध्यान से देखें। ठीक है, तो हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे
कि परीक्षा हम अगर हमारे सामने परीक्षा है तो हम कैसे अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्या हम करें। ठीक है, इन चीजों को हम रखें। सबके पास कॉपी पेन होगा, हम नोट करके लिखा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा क्या है, एक चुनौती, उसका सामना करना। तो हम कैसे मानसिक रूप से मजबूत रहें कि हम उसका सामना करें, अपना बेहतर परफॉर्मेंस दें, बढ़िया मार्क्स लाएं। सब लोग चाहते हैं मार्क्स आए हमारे अच्छे, सबकी कामना है कि मार्क्स बहुत अच्छे है ना। कोई ऐसा भी चाहता है मार्क्स ना आए, कोई है क्या? नहीं है ना। तो देखिए, जब भी आपके सामने आपके नजदीक परीक्षा है तो आपको 3-4 चीजों पे ध्यान देना होगा। इसमें सबसे पहला चीज जो आप नोट करते जाए कुछ पॉइंट्स है मेन। ठीक है, सबसे पहला है माइंडफुलनेस। क्या है, इसके बारे में हम आगे बताते हैं आपको। सबसे पहला है माइंडफुलनेस। ठीक है, दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, तीसरा है स्लीप। ठीक है, चौथा है न्यूट्रिशियस फूड। पांचवा है एक्सरसाइज और छठा है हैप्पी हार्मोन्स। ये 5 चीजें आप ध्यान रखनी है। अब हम इसमें आपको से सुने हुए स्लीप की हम बात कर रहे हैं, हम फूड की बात कर रहे हैं, हैप्पी हार्मोन की बात कर रहे हैं, माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं। क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने बोला था माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है समझते हो आप? माइंडफुलनेस का जो हिंदी वर्ड होता है, हिंदी उसका मतलब होता है, उसका मतलब होता है सचेतन। ये और भी समझ में आए। ठीक है, माइंडफुलनेस मतलब क्या है कि हम अपने वर्तमान में रहें। परीक्षा के दौरान होता है कि आप पढ़ाई करते हो ना, आपको आता है कि क्या रिजल्ट आएगा, फिर कोई चीज नहीं पढ़ेगा तो याद आता है कि हम पढ़े नहीं। तो ना इतिहास में जाना है ना भविष्य में जाना है, हमको कहाँ रहना है, वर्तमान में रहना है। ठीक है, और वर्तमान में रह के हम क्या करते हैं, अपनी पूरी तैयारी करते हैं, फोकस कहाँ रखते हैं, रिवीजन पे। हमें कुछ नहीं सोचना है रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा, हमने पहले कितनी पढ़ाई की नहीं, कुछ नहीं। जितना टाइम जो 2-4 दिन 10 दिन तैयारी के होते हैं परीक्षा का अंतिम दौर में, उस समय पूरा फोकस आपका ये रहना चाहिए कि हम रिवीजन कितना एकाग्र होकर कर पाते। ठीक है, तो माइंडफुलनेस समझ में आ गया आपको क्या है। हमको वर्तमान में रहना है, किसी चीज पे हमको ध्यान नहीं देना, हमको सिर्फ रिवीजन करना है। समय कम है, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही हमारा बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, सकारात्मक जो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक सोच। वो क्या होता है, वो ये होता है कि हम किस चीज के बारे में नेगेटिव ना सोचें, मेरा नंबर कम आ जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पापा डांटेंगे या स्कूल में कौन निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हम बस हम अच्छा करेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं, हम अच्छा करेंगे। कुछ भी निगेटिव नहीं सोचता है। अगर निगेटिव अगर आता भी है विचार कोई दिमाग में, उसको तुरंत साइड कर देना है, अपना रिवीजन में लग जाना है। वो सोचता नहीं है, जो सोचता है वो अच्छा सोचता है। ठीक है, ये परीक्षा के अंतिम दौर में चीजें करनी होती है। दूसरा चीज क्या है कि मैंने स्लीप पर होना, अब बोलो कि अगर परीक्षा तो तैयारी कर ली है, हम सोएंगे तो किस काम चलेंगे। हम ये नहीं करें कि आप 12 घंटा सोएंगे, हम ये करें कि जो आपकी नींद है 5 से 6 घंटे, उसको जरूर आप पूरा कीजिए। क्योंकि जब आप नींद पूरी आपकी होती है 5-6 घंटे की, अगर सो लेते हैं अच्छे से, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी ध्यान केंद्रित करने की जो पावर रिविजन कर रहे हैं, वो एकाग्र करना है, उसमें मदद मिलता है। दूसरा चीज क्या होता है कि आपकी मेमोरी पावर जो है वो बढ़ती है। ठीक है, आपकी नींद पूरी अगर हो गई तो मेमोरी आपकी जो है थोड़ा सा पावर ठीक। तीसरा चीज क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। नींद पूरी नहीं है तो आपको लगेगा क्या है, वजन कम लगेगा। चौथा चीज क्या है, प्रतिक्रिया समय, किसी चीज का तुरंत घबराते नहीं है, आप बहुत ही धैर्य के साथ रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए परीक्षा में नींद
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नींद के साथ कोई समझौता नहीं। जो आपका प्रॉपर नींद है 5 घंटे का, 6 घंटे का, जो भी है, उसको जरूर पूरा करें। ये कुछ बच्चों क्या है तो ये रात में जाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना तो आपके परफॉर्मेंस पे वो असर करता है। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि न्यूट्रिशियस फूड, परीक्षा के समय में बहुत ही ध्यान रखें कि किसी भी हालत में हमें जंक फूड का सेवन नहीं करना है। सड़क पे कोई चीज मिल रही है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि थोड़ा सा अगर फूड पॉइजनिंग हो गया, वहां पे अगर खराब चीजें अगर वहां पे मिल रही है बाजार में, तो आपके वो डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म करेगा, उल्टी दस्त शुरू हो जाएगी, फिर आपका जो साल भर की तैयारी है वो पानी हो जाएगी। ठीक है। तो उस समय मम्मी पापा से बोलिए आपको पौष्टिक खाना दें, पौष्टिक आहार दें। ठीक है। उसके बाद क्या मैंने बोला, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का समय आप एक्सरसाइज, परीक्षा का एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरा एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप थोड़े से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। मान लीजिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा बीच में ब्रेक लें। मान लीजिए पढ़ना तो है, आपको परीक्षा तैयारी करनी है तो 10 घंटे 12 घंटे आपको पढ़ना है, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन मान लीजिए 2 घंटे पढ़े, थोड़ा सा रिलैक्स हो लिया, फिर 2 घंटे पढ़े, फिर थोड़ा घूम लिया, थोड़ा बॉडी जो भी है तो कर लिया, थोड़ा सा ब्रीदिंग कर। ब्रीदिंग क्या, जैसे बैठे खूब तेज सांस लिया, फिर छोड़ा। इससे क्या होता है, इससे जो ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन होता है वो माइंड में आपको डोपामाइन का स्तर को बढ़ाता है, आपको खुशी देता है कि हार्मोन को सिंथेसिस करता है। ठीक है ना। तो इसलिए जब भी आपका परीक्षा है तो आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा सांस एक्सरसाइज जरूर करें, हर 1 घंटे में करें। ठीक है। इससे आप बहुत ज्यादा मतलब कि अपने आप की जो मेमोरी पावर होती है उस पर सकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है। आप एकाग्र हो पाते हैं और आप रिलैक्स रहते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं जो कि आपको परीक्षा के दौरान आपको करनी चाहिए। ठीक है। और हमेशा जब आप सकारात्मक सोचेंगे, माइंडफुलनेस आपका रहेगा, आप वर्तमान में रहेंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे और ये सब चीज पूरा करेंगे, तो आपके जो माइंड है तो निश्चित तौर पर जो डोपामाइन का स्तर होता है, जो आपका एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि आपकी मेमोरी को क्या करता है, एनहांस करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके उत्साह को बढ़ाता है। ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो परीक्षा आए तो परीक्षा के जो दौर होता है वो 10-20 दिन का जो तैयारी का आपका समय होता है वो आपकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। उस समय अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो क्या होगा, आपकी पूरी तैयारी जो है, जो साल आपने पढ़ाई की है, उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, क्या मेरी चीज बोली, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले क्या था, माइंडफुलनेस, याद है, बोले आप लोग। पहला क्या है, और सब तेज बोलो, माइंडफुलनेस पहला। दूसरा क्या था, पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा न्यूट्रिशियस फूड। पांचवा क्या था, एक्सरसाइज। और छठा क्या था, हैप्पी हार्मोन्स। ठीक है। ये आपको याद रहेगा ना। तो इसको आप लोग फॉलो करें। ये आपका क्या होगी, जो आपकी तैयारी होगी ना उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएगी, बहुत ज्यादा इनहांस करेगी। जो आपका जो जितनी तैयारी है उसमें बहुत ज्यादा गुणवत्ता लाएगी। और आप मेन काम का आपका रिवीजन करना है और अपने आप को रिचार्ज करना है। रिचार्ज किस तरह से, जो अपनी अच्छी अच्छी सफलताएं हैं उसको आप याद करें। उस बीच में जब भी थोड़ा रिलैक्स होता है, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा बीच में कभी दिमाग हुआ थोड़ा सा वो हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप रिचार्ज करें। रिचार्ज मतलब क्या होता है कि अच्छी अच्छी जो यादें उसको याद करें। कभी इसको बात नहीं, उनको बताइए कि पापा थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सा उस समय डांटिएगा मत, ठीक है ना। और थोड़ा उनको समझाइए, बताइएगा सर एक आए स्कूल में बोला कि परीक्षा हम है तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो उनको समझाइए कि आपका अगर सपोर्ट हमको मिलेगा, उनको जाकर बताना मम्मी पापा को कि आपका अगर सपोर्ट हमको मिलेगा तो क्या क्या होगा मेरे अंदर चेंज, ये देखो आप। तो जब भी परिवार का सहयोग मिलता है, मम्मी पापा भाई बहन जो भी है जब सपोर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उससे ये होता है कि एक भावनात्मक समर्थन आपको मिलता है, एक इमोशनल सपोर्ट आपको मिलता है। और वो सपोर्ट फिर आपका क्या करता है, हैप्पी हार्मोन को
सिद्ध करता है। अब उस समय अगर मम्मी पापा डांटना शुरू कर दें तो फिर आपका जो बना उत्साह है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उनको समझाइएगा भैया आप पापा आपका मम्मी आपका इमोशनल सपोर्ट हमें चाहिए, परीक्षा चल रहा है। ठीक है, कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि जो आपका जब घर में जब आपको सपोर्ट मिलता है, पारिवारिक सपोर्ट मिलता है, तो आपका आत्मविश्वास से बढ़ता है। ठीक है, ये हर मम्मी पापा को समझना चाहिए कि हम कैसे बच्चों को थोड़ा सा उनका इमोशनल सपोर्ट दें, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका क्या है, उनका सकारात्मक सोच उनकी बहुत उसको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप जाके घर में जरूर बताओ कि पापा ये हमको चाहिए। ठीक है, बात करोगे ना? तो इसलिए आप ये समझिए कि आपने जो पूरी तैयारी की है, आपने जो पूरी तैयारी की है उसका रिजल्ट लेना। ठीक है, रिजल्ट कैसे लेंगे? जबकि हम अपनी तैयारी जितनी भी किए हैं उसको हम अंतिम समय में, बेसिकली परीक्षा होता क्या, देखिए परीक्षा आपने वाली घड़ी देखी है क्या, जो ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, बीच में इतना रहती है, फिर नीचे इतना बड़ा रहता है, फिर उसमें पानी जाता रहता है, देखिए क्या? तो वही है, देखिए दिमाग आप पढ़ते बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और उस समय रिवाइज करते हो कितना, वो छोटा सा, फिर एग्जाम हॉल जाते हो तो पूरा आप लिख देते हो, नोट्स इसीलिए बनाते हैं ना कि पूरे नॉलेज को एक लाइन में कर दिया। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये चीज मान के चलिए कि रिवीजन का कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब परीक्षा के दौरान आपको कुछ चीजें जो बहुत ध्यान देनी है, वो कि आपको जो है वो नहीं करना कोई भी मतलब कि नया चीज, हमारे 10 दिन या 5 दिन परीक्षा है उसमें कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करो, जो पढ़ा हुआ है पहले से उसी को रिवाइज करो, क्योंकि रिविजन करोगे तो आपकी जो वहां प्रोडक्टिविटी वो ज्यादा होगी बनिस्बत इसके कि आप कोई मतलब कि नया चीज पढ़ोगे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और वो समझ में आएगा कितना लिख पाओगे, इसमें खतरा रहता है। तो आप हमेशा कोशिश करें जितना आपके पास मैटर है उसको आप रिवाइज करो। रिवीजन रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना आप परीक्षा के पहले 10 दिन 5 दिन में जितना आप रिवाइज कर लोगे, या 4 दिन में जितना आप रिवाइज कर लोगे, जितना रिवाइज कर लोगे, 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, वो आपको बहुत वहां बहुत फायदा करता है। कहाँ पे? एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि जितना रिवाइज होता क्या है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, ठीक है, तो आप ये समझिए जैसे ही आप एंटर करते हैं, जब आप एडमिट कार्ड दिखाते हैं और अंदर जब स्कूल में जा रहे होते हैं, आपका जो है ना आपका आपका आधा मेमोरी जैसे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब पेपर मिलने तक वो घटता रहता है, फिर जब पेपर मिलता है फिर आपको आता हम पढ़े हैं। तो इसलिए जितना आप रिविजन किए रहेंगे वो उस दौर को आप काट लेंगे। ठीक है, और कभी भी एग्जामिनेशन के पहले कई बच्चों की आदत होती है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, थोड़ा सा वो कर ले, देख ले फटाफट, कुछ और देख ले, कुछ और देख ले, कुछ देख, सावधानी से, क्योंकि कुछ में कुछ नया आपने देख लिया तो हो सकता है कंफ्यूज आप हो जाओगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया, उसी को बार बार नहीं देखना है, कोई बुक में आपका हाईलाइट नहीं उसको बार बार देखें, उस समय देखोगे तो हो सकता है कि आप क्या हो जाओ, हो सकता है कि आप जो है मतलब कि कंफ्यूज हो जाओ या ये हो जाओ। घबराना नहीं है, धैर्य से पेपर देखिए, सबसे पहले जो आ रहा है उसको आप बढ़िया से आंसर लिखना है। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। एक आपको मजेदार चीज बताते हैं, एक होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। ठीक है, परीक्षा में एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, वो क्या होता है किसी को पता है? वो क्या होता है कि जैसे कि जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं यूपीएससी मेडिकल की या जो परीक्षाएं होती हैं, कभी कभी स्कूल की परीक्षाओं में भी, जो बोर्ड की परीक्षाएं उसमें भी एक चीज कर दिया जाता है। करें क्या वो लोग कि लगातार 10 क्वेश्चन ऐसा आपको दे देंगे कि आप जो है नहीं आएगा, उसको बोलते हैं क्या? एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। मान लो कि पहले किसी से पूछ रहे हैं वैसा इस सेक्शन से, उस सेक्शन नंबर कोई और सेक्शन से दे देंगे। ठीक है, वो आपका जो आपका धैर्य होता है उसकी परीक्षा होती है। लगातार 10 क्वेश्चन नहीं आया, आप पागल हो जाते हैं, यार हमको नहीं आ रहा है। अब उसके बाद अब दिमाग काम करना शुरू कर दिया, उसमें अब जो हैप्पी हार्मोन्स है वो घटना शुरू हो गए, अब आपकी मेमोरी पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर नहीं आ, हॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने अपना धैर्य बना लिया
तो आप समझिए कम से कम आपके 20 to 30% नंबर तो आपके ज्यादा आने ही हैं। आइए आप प्रैक्टिस कब करते हो? जब परीक्षा के पहले, जब आप अपना मॉक टेस्ट देते हैं या उसका तैयारी करते हैं, तो उस समय ये काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि परीक्षा में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहेगा, लेकिन उसका सामना हम कैसे करेंगे? बिल्कुल, अरे ठीक है, देखते हैं। जब भी आपके सामने संकट आता है और आप घबरा जाते हैं, तो उस संकट से चुनौती का जो आपका पावर होता है, जो आपका आत्मबल होता है, वो बिल्कुल गिर जाता है। और जब भी संकट आता है, उस समय अगर आपने धैर्य रख लिया, थोड़ा सा बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं है, तनाव में नहीं है, तब फिर आप एक शानदार परफॉर्मेंस करते हैं, एक इतिहास बनता है, ठीक है। तो इसलिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है, उससे घबराना नहीं है। उसको परीक्षा में धैर्य भी आपका सबसे बड़ा सहारा होता है, समझ रहे हैं? परीक्षा में धैर्य जो होता है ना, जितना आप धैर्यवान रहेंगे परीक्षा और परीक्षा के पूर्व जो 10 दिन पहले तैयारी का समय होता है, परीक्षा के दौरान, वो आपका सबसे बड़ा ताकत बनता है और आपके परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी भूमिका को निभाता है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि परीक्षा में कोई भी अगर कठिन सवाल आता है, घबराना नहीं है, आराम से उसको सोचना है क्या था, हो सकता है याद है, ठीक है। ध्यान नहीं आ रहा हूं, ठीक है, वो है स्वाभाविक है, लेकिन चीजें हो जाती हैं। जैसे हम अपनी बात बता रहे हैं कि हम लोग एक बार यूपीएससी का प्री एग्जाम दे रहे थे, आईएएस का जो होता है। एक बार क्या हुआ, लगातार 20 क्वेश्चन, लगातार 20 क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोग कुछ समझ नहीं लगा क्या है, ठीक है। उसमें कितने लड़कों की हालत खराब हो गई, उनका सारा आगे का परफॉर्मेंस खराब हो गया, ठीक है। इसलिए परीक्षा में घबराना नहीं है, ठीक है। तो मेन हमारा जो बात था, आप समझ गए हैं करीब करीब। आप लोग भूख भी लगी, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। आप लोगों को समझ में आएगा क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से रिवाइज करें। क्या क्या? माइंडफुलनेस, ना आगे सोचना है ना पीछे सोचना है, बस हमको रिवीजन करना है, ठीक है। अपना पूरा फोकस कहाँ, एनर्जी को कहाँ लगाना है? रिवीजन पे। दूसरा क्या था? पॉजिटिव माइंड, बिल्कुल कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, परीक्षा में याद नहीं आएगा। हम बोला ना कि परीक्षा के दिन पहले कुछ भी याद नहीं आएगा। हम लोग परीक्षा हो याद है कि जब परीक्षा के दिन पहले लगता है कुछ लोगों को याद नहीं, स्वाभाविक चीज है, ठीक है। तीसरा चीज क्या था? स्लीप, सोना है। ये नहीं कि 15 घंटा सोना है, जितना सोते हैं उतना सोना है कि प्रॉपर आपका नींद का जो डिमांड है वो पूरा हो जाए, ठीक है। क्योंकि उससे भी क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी, आपका एकाग्रता बढ़ेगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? न्यूट्रिशियस फूड, पेट गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद क्या है? एक्सरसाइज, ब्रीदिंग करना है, थोड़ा सा सांस लेना है। जब पढ़े 15 घंटे बाद थोड़ा सा, ठीक है। इकाग्रता से होता क्या है ना कि पूरा ऑक्सीजन जब माइंड में जाता है तो बहुत रिलैक्स आदमी होता है, ठीक है। या मान लीजिए पढ़ 1 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा सा जाके थोड़ा एरिया में टहल के चले आए, थोड़ा कहीं घूम के चले आए, मैंने वही घर में, बाहर नहीं, घर में थोड़ा टहल लिया, थोड़ा सा हाथ पैर सीधा कर लिया, थोड़ा पैर ऐसे कर लिया, है ना, बॉडी स्ट्रेचिंग जो होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? हैप्पी हार्मोन्स। हैप्पी हार्मोन्स कब रिलीज होंगे? जब ये सारे चीज आप करेंगे तो अपने आप हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे। हैप्पी हार्मोन का क्या है कि हैप्पी हार्मोन क्या करता है कि आपके दिमाग को बहुत खुश करता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि हैप्पी हार्मोन, आप थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए 2 मिनट 4 मिनट के लिए गाने भी सुन लें। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं चलाना एग्जाम पीरियड में, एकदम दूर रहना उससे, ठीक है। और थोड़ा कभी गाना सुन लिया, उससे भी हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। तो मम्मी पापा थोड़ा सा बात कर लिया, अच्छी बातें कर ली, ठीक है। उसके अलावा बढ़िया खाना खाए, बढ़िया सोए, हैप्पी हार्मोन आपका रिलीज, ठीक है। जो कि आपके डोपामाइन का जब स्तर जो बढ़ेगा तो आपकी मेमोरी जो है और इनहांस होगी, जो चीजें याद एक बार पढ़ी होगी वो भी याद आएगी, आपकी स्मृति उससे प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये काम हम लोग को करना है। ये सर ये माइक चल रहा है क्या? जी जब बच्चों को दीजिए। अब आपको जो सवाल है वो आप पूछिए, हम उसका जवाब को देंगे।
कि क्या करना है। जो भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत अगर आ रही है तो आप बताएं, ठीक है। अभी कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सा अपना पूरा फोकस रिवीजन पे करना है और कुछ नहीं करना है। रिवीजन, मोबाइल से दूरी, इसी पे ध्यान रखना है। किसी का कोई सवाल तो पूछ सकता है परीक्षा के दौरान। आप लोगों को कैसा लगा? ठीक लगा? अच्छा लगा? करोगे ना इसको? आप समझिएगा, अगर कम से कम अगर ये कर लोगे ना 30-40 नंबर तो बढ़ने वाला है। 30 to 40% नंबर नहीं बोलते हैं, 30 to 40% नंबर बढ़ेगा। लड़के यहीं पे गलती करते हैं, सब तैयारी किया, लास्ट में जाएगा सब गड़बड़। सर, हाँ। हैप्पी हॉर्मोन्स के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या है? क्या हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या है? सबसे बेस्ट जो मैंने बोला माइंडफुल है, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब क्या है कि हम वर्तमान में रहें, भविष्य में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ है, इसके बारे में बिल्कुल न सोचे। थोड़ा सा गाना वाना सुन सकते हैं, ठीक है, अच्छी नींद ले सकते हैं, इसके कारण से आपका हैप्पी हार्मोन इंक्रीज ज्यादा। और बताइए, और किसी का सवाल? सर, जैसे हम लोग एग्जाम में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, याद रहते हैं उसको भूल जाते हैं। एग्जाम में पढ़ते हैं, एग्जाम नहीं पढ़ते हैं, आप परीक्षा के पहले पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास में पढ़ते हैं। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं ना एक बार, तो आप क्यों भूल जाते हैं? एक बड़ा सवाल है। भूलना ही नहीं, जब भी पढ़े ना, अगर उसका हम कुछ विजुअलाइज करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को अगर हम समझते हैं, ठीक है, तुम कभी नहीं भूलेंगे। मान लीजिए आपका नाम क्या है? तौसीफ। 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 तौसीफ का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है? नहीं पता आपका नाम का मतलब क्या है? सर, नहीं पता है। देखिए, मान लीजिए कि तौसीफ मतलब बहुत सुंदर कोई चीज हुआ, तो दिमाग में रखना कि बहुत सुंदर, तो फिर वो तौसीफ याद रहेगा, नहीं भूलेगा नाम, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज अगर पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं, ठीक है, याद करते हैं, तो वो चीज जो होता है वो बहुत अलग होता है। वो उसको विजुलाइज करके याद करते हैं और बार बार उसको रिवाइज करते हैं। एक ही चीज को अगर आप एक ही जगह से, नहीं कि एक बार यहाँ से पढ़ा, एक बार यहाँ से पढ़ाई नहीं, एक ही इसलिए नोट्स का होता है, नोट्स बनाया, क्लास नोट्स बनाया, सर वगैरह से पढ़ाते हैं, क्लास नोट्स बनाए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, आपको याद होगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अच्छे गुण, तो कोई किसी को नाम याद करना, अच्छा गुण याद कर लिया तो उसको तौसीफ का हमेशा नाम आएगा। विजुलाइज करें, कॉन्सेप्ट बनाए और रिवीजन करें, ठीक है। किसी का कोई सवाल? हेलो सर, मेरा मोबाइल है क्या? real dopamine. हाँ, How to chase real dopamine? क्या कर How to chase real dopamine? क्या कर रहा हूँ इसको पता? सर, रियल डोपामिन को कैसे चेस करना है हम लोग को? रियल देखिए, डोपामाइन एक्चुअली होता क्या है ना, जो आप पॉजिटिव होते हैं, माइंडफुलनेस रखते हैं, कि वर्तमान में रहते हैं, थोड़ा सा घर परिवार से बात करते हैं, संगीत सुनते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है डोपामाइन का जो स्तर है वो दिमाग में बढ़ने लगता है, ठीक है ना। ये सब प्रयास आप करते हैं। तो सर, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग फेक डोपामिन में ही फंसे रहते हैं। क्या? फेक डोपामिन, जैसे कि वीडियो देखना, गेम खेलना। हाँ, तो देखिए, ये जो आप देखते हैं ना, वीडियो देखते हैं, गेम करते हैं, आपको मैंने बताया था क्या? नहीं बताया था ना, आपको बताते हैं, वीडियो देखते हैं ना, रील्स वगैरह देखते हैं ना, रील्स कितना खतरनाक है आपको बता दें। कभी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और NCERT की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया कि आप रील्स देखते हैं ना, ठीक है, रील्स क्या होता है, 5 सेकंड में गया, 10 सेकंड में गया, 15 सेकंड में गया, तो भगाते ही जाते हो, ठीक है। ये इतना खतरनाक चीज है कि जब आप पढ़ने बैठते हो, तो जब एक पेज मान लो कोई चैप्टर पढ़ना है, आप पढ़ोगे तो मन क्या करेगा, जैसे 2-3 लाइन पढ़ो, किस होता है जो आप देखते हो, लगातार देखते जाते हो, तो उसका कुछ वो होता है, बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड क्या होता है? कभी नदी आएगा, कभी समुद्र आएगा, कभी पहाड़ आएगा, कभी रोड आएगा, कभी कहीं कहीं का सीन आता रहता है, और वो आपका दिमाग जब देखते हो ना, वो पूरा विजुलाइज करता है पूरा। तो उसमें मतलब आप ये समझिए कि आधे घंटे का अगर रील आप देखते हो, तो 20 घंटे की आपकी पढ़ाई में जितनी एनर्जी जाती है, उतना आधे घंटे की रील नहीं चली जाती। तो इसलिए
अगर क्या सवाल था आपका कि जो वीडियो अगर देखते हैं उसको तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए क्या सवाल पीरियड में, सोशल मीडिया वीडियो कुछ भी नहीं देखना, आपको सिर्फ रिवीजन में फोकस करना। हाँ, और किसी का एजुकेशन के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसके लिए एआई यूज़ करना सही रहेगा कि नहीं? जैसे कि हम लोग एग्जाम के लिए रिवीजन के लिए एआई यूज़ करते हैं। नहीं, देखिए कोई भी तकनीक अपने आप में खराब नहीं होती है, सवाल है कि हम उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। अगर आप नई तकनीक के साथ एआई के साथ अगर आप एडजस्ट है, आपको पूरा आपका एटीट्यूड बन चुका है, आपका हैबिट बन चुका है, तो आप बिल्कुल उसका सहारा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके आगे मत बनिए, अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो रास्ता है उसको बना कर रखिए। सर, आपको नहीं लगता कि एग्जाम टाइम में अगर कोई पेरेंट्स या फिर टीचर्स को ज्यादा ही स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर लेते हैं तो वो उनके रिजल्ट पे भी उसका प्रभाव पड़ता है? वो एग्जाम टाइम में नहीं करते हैं, वो साल भर एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ। ठीक है ना, वो साल भर बोलते गए पढ़ नहीं रहा है, कैसे नंबर आएंगे, कैसे सफल होगा, कैसे तुम्हारा करियर बनेगा, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन वो हमेशा रहता है, एग्जाम के टाइम पे नहीं रहना चाहिए, एग्जाम के टाइम बिल्कुल रहना चाहिए। बच्चा बस कर रहा है, रिवीजन अच्छे से करे, लेकिन गलती होता क्या है कि जब आप एग्जाम है और आप कहीं मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, और मोबाइल चला रहे हो या वीडियो देख रहे हो या बच्चों के साथ गप कर रहे हो या अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो फिर फादर मदर लोग और टीचर लोग का जो डोपामाइन होता है ना वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, उनका हैप्पी हार्मोन बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो तनाव में आ जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन करते हैं उसको मन में रखना, सोचना नहीं ज्यादा, एग्जाम के समय में नहीं, लेकिन उम्मीद तो है, उम्मीद है। आपकी मम्मी को नहीं होता अगर सुबह ठंडा तो सोए रहे हैं, लेकिन उठ के बनाती है ना, तुम लोग नाश्ता की सवाल मेरी बेटी खा के जाएगी। सवाल किसी का कोई सवाल पूछो, करो। ये तुम लोगों के सवाल नहीं है? प्राइज जीता आज बच्चों ने सारे सवाल पूछे, आज का एग्जाम बदला हुआ। सर, अभी जैसे कि एजुकेशन और स्किल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो फिर हम लोग मार्क्स से एक्सेप्ट क्यों करते हैं कि मार्क्स ज्यादा आना चाहिए? देखिए मार्क्स इसलिए हम एक्सेप्ट करते हैं, सुनो, मार्क्स क्या है आपकी पहचान, सही बताएं कि आपके मार्क्स का आपके फ्यूचर में कोई रोल नहीं है। आप अगर यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, तो देखिए मान लीजिए एक अच्छा एक पैमाना होता है मार्क्स आपको जज करने का, हम कैसे जज करते हैं आपका कितना मार्क्स आया, ठीक है, तो 90%, तो आपका एक जजमेंट का एक लेवल हो गया। कहीं भी आप बोलेंगे मैं 90% मार्क्स आया तो ये जरूर बोलेगा कि ये लड़की थोड़ी सिंसियर लग रही, पढ़ने में अच्छी, ठीक है ना। लेकिन मार्क्स का लेके लोड नहीं लेना, उसको तनाव नहीं लेना, मार्क्स को बस एक वो मानना है कि मेरा मार्क्स एक अच्छा आ जाए ताकि मेरा आए करियर जो है वो अच्छा रहे। लेकिन मेन बात तो यही हो गया कि जब तक मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तब तक करियर अच्छा नहीं होगा। नहीं, देखिए मार्क्स के जब तक आपका मार्क्स अच्छा नहीं, करियर नहीं अच्छा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मार्क्स करियर के लिए मार्क्स भी एक बड़ा आधार है, ठीक है। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हो, कंपटीशन में क्या होता है, आप आईएएस की परीक्षाओं में देखो, जिसका 3rd डिवीजन आया हो वो भी आईएएस बन जाता है, जिसका टॉप किया वो नहीं कर पाता। तो मेन चीज आपके सामने जब चैलेंज है, जो भी आपके सामने प्रतियोगिता परीक्षा है या जो भी आपको तैयारी करनी है, उसके हिसाब से आप कितना तैयारी करते हैं। और जिंदगी में सफल होने के लिए स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ाई के साथ अपनी स्किल कितनी की। एक होता है पढ़ाई रट लिया, एक होता है हम क्रिएटिव अप्रोच रखना कि हम किसी को कर रहे हैं तो कितना तरीके से कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मार्क्स एक सत्य है समाज में और रहेगा, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। थैंक यू सर। बातें बताई है और जाके मम्मी पापा से बात कर लीजिएगा और पूरे उत्साह से जाना है, परीक्षा देना और बढ़िया करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हाँ, रीडायरेक्शन या फुल एडिक्शन कैसे कम कर सकते हैं? ये तो आपका लंबा वो हो गया। देखिए रीड एडिक्शन या फोन एडिक्शन को कम करने के लिए आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा, कोई आपको करा नहीं सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि एक इसको बोलते हैं कि रील एडिक्शन या वो रहे, हम डिजिटल ओवरलोड में आ रहे हैं, ठीक है, डिजिटली ओवरलोडेड हो रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक संकल्पना है डिजिटल डिटॉक्स की, ठीक है। डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, तो कुछ अपने पसंद का काम करेंगे, कोई पेंटिंग बनाएंगे,
कुछ किताब पढ़ने का मन उसको करेंगे, कोई म्यूजिक सुनेंगे या कोई और किसी और चीज में अपने आप को हम वहां पे क्या करेंगे, लगा देंगे। जब ऐसा करते रहेंगे धीरे धीरे करके हमारा एडिक्शन खत्म हो जाएगा। जब डिजिटल से काम करेंगे, पसंद का अपना काम करेंगे, अपने हॉबी का अपना काम करेंगे, तो आपका ये जो एडिक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग पूरा बढ़िया से कॉन्फिडेंस रखना, धैर्य रखना, कॉन्फिडेंस रखना। हमको सब आता है, भले तो वो याद नहीं आ रहा, वो हमको आता है। नेता सबको देखती हो ना, जब इलेक्शन में जाते हैं लोग तो क्या करते हैं लोग? हाँ सर हाँ, क्या हाल है बिल्कुल सर? हाँ याद है हमको। हाँ बोलिए। सर कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने पढ़ाई को लेकर टेंशन में रहते हैं और फैमिली टेंशन में रहते हैं, और इन सब से हम लोग कैसे बच सकते हैं? देखिए, तनाव आपके लिए कोई फायदा नहीं होने वाला। तनाव से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तनाव करोगे आपके दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स क्या होंगे, डोपामाइन का लेवल घटेगा और आपको जो याद होगा वो भी नहीं याद होगा। तनाव रहना नहीं है, तनाव किसी कह रहा हम बस अपना काम करेंगे, बढ़िया से करेंगे, खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो हमारा जो अपने आप हमारा परफॉर्मेंस होगा अच्छा रहेगा। तनाव देगी क्या होता है? तनाव हमेशा नुकसान करता है। तनाव कुछ देता नहीं, नुकसान करता है। सर कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को अपनी मोटिवेट करते हैं। हमें सुनना ही नहीं है, हमें सुनना ही नहीं है। कोई अगर मोटिवेट करता है, डिमोटिवेट करता है, हम सुनेंगे नहीं। उसके बाद सुना इधर से निकाल दिया। दिक्कत क्या होता है, किसी ने कुछ बोला, आपने उसको दिमाग में लगा उसको सोचने लगे, यार उसने ये कहा, वो बोला कि कोई इंसान को बोल दिया, यार तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। अब उसको दिमाग में बिठा दिया, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। अब उसमें ध्यान नहीं देना। ठीक है ना? तो चलिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ क्या सर जैसे कि आप नहीं है, कोई थर्ड भी आता है एग्जामिनेशन में हॉल में तो यूपीएससी क्लियर कर लेता है, बट फर्स्ट आके भी यूपीएससी क्लियर नहीं कर लेता है। बट हमारे सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेज में ये होता है कि मार्क्स सबसे इम्पोर्टेंट रखा जाता है, सबसे ऊपर नहीं। देखिए, मार्क्स एक इम्पोर्टेंट हम इसलिए नहीं बोले कि जैसे मान लो कोई लड़का प्रयास किया, अब परीक्षा के हॉल में उसका अचानक तबीयत खराब हो गया, उसका मार्क्स नहीं आ पाया, अलग चीज होती है। बट ठीक है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। हाँ, मार्क्स अच्छा है क्योंकि उससे फिर आपका एकेडमिक अच्छा होता है, तो फिर आगे जैसे कई सारी कंपनियां आती हैं, जैसे इंजीनियरिंग करते हैं लोग या मेडिकल करते हैं, कई सारी कंपनियां हायर करने आती हैं, तो एक बार देखती है कितना मार्क्स आपके करियर पर असर पड़ता है उसका। ठीक है, मार्क्स हमेशा बढ़िया है, ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर मान ली किसी कारण से अगर कम भी आ गया तो भी दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया चलती है। मार्क्स से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्किल, बट हमारे सोसाइटी में, स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसे अपने स्किल को डेवलप कर सके। हमारे यहाँ जो शिक्षण व्यवस्था रही है उसकी दिशागति रही है कि हमने स्किल पे ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ डिग्री पे ध्यान दिया। लेकिन स्किल हमेशा इम्पोर्टेंट रही है। हमारे अपने उसकी व्यवस्था का बात है, लेकिन हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ स्किल अपना डेवलप करते हैं। सर ये तो वही वाली बात होगी कि जो दुनिया करे वो हम भी करें। ये मेरा कहने का मतलब दुनिया हमें क्या बोला कि हमें अपने स्किल पे, मान लीजिए आप लिखने का कोई लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं, बढ़िया बोलते हैं, तो ये स्किल को डेवलप कीजिए ना। ये आपकी क्या होगा, आपके करियर में प्लस पॉइंट। ठीक है, दुनिया जो व्यवस्था चलने दो, हम अपना काम करेंगे। ठीक है ना, दुनिया से क्यों चले, हम अपना एक अलग रास्ता बनाएंगे। Friends, my dear friends, please take your seats. I hope आज का जो सेशन था आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। Yes or no? So it's time to say a big thank you to our academic counselor, Dr. Elizabeth Patel sir. For that, I request you all to welcome him and express your sincere gratitude with a huge round of applause. Examinations are about to come for the board exams, and the last students you are preparing for pre-board.